Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. I hope all of you are doing very, very well and your studies are going great. So, ladies and gentlemen, the only way to clear the CSAT is that you do PYQs every day because all the toppers and everyone who has cleared it, they have told that the PYQ is one of the most important thing. And the UPSC is the exam where the same kind of questions are being repeated again and again. सो कंसेप्ट करो उसके बाद जितना ज्यादा हो सकता है पीवाईक्यूज करो सो विल टेक अप today's 5 PYQ. 2 PYQ would be from this number system जो with the topic we done where the number of the form ABC would be given and it can be represented 102A plus 10B plus C type. The two questions were left, will do. And we have already uploaded a video of the concept of even and odd number. You first watch that video and then we'll take 3 PYQs from the year 2024 which were asked in respect to the concept of odd and even number. So आप देख सकते हो कि every year 2 to 3 questions are asked from the concept of this, where a number is presented in the form of ABC and 3 questions every year are asked from odd and even number. So total आपके 6 questions हो जाते हैं, ठीक है? तो 25 into your 6 is 6 5 30, 6 to 12 and 3 15. So आपके पास 15 मार्क्स का एडवांटेज आ जाएगा सिर्फ ये दो टॉपिक करके ही. ओके, so let's start with the PYQ. So we'll take the question paper of 2020 first. Set A, we'll take the question number your 16. Okay. This is also a similar type of question which we have already done. यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है और आपका आंसर आ जाएगा. The question says let A3BC and DE2F be four digit number where each letter represent different digit greater than 3. ये कह रहा है कि A3BC एक नंबर है और दूसरा है DE2F है और ये बना हुआ है A, B, C, D, F को यूज कर जहाँ पे सारे डिजिट्स अलग अलग हैं. ऑल आर डिस्टेंट डिजिट्स एंड ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3. सो द वैल्यूज दीज A, B, C, D, E and F would be taking would be 4, 5, 6, 7, 8 और 9 because 9 के बाद तो वन डिजिट एग्जिस्ट ही नहीं करता. फर्दर the sum of the numbers is this. फर्दर मुझे दिया है A3 BC plus your DE2F is equal to your 15902. This is given to me. Then what is the difference between A and D? I have to find that what is A minus D. Okay. वो तो मुझे यहाँ देखिए अब विल यूज द सेम टेक्निक ऑफ कंपैरिजन कि जो यूनिट डिजिट्स के नंबर्स हैं उनको ऐड करके यहाँ यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 10th डिजिट के जो नंबर हैं उनको ऐड करके यहाँ 10 में क्या आ रहा है, 100 डिजिट के नंबर को ऐड करके यहाँ पर क्या आ रहा है. तो वन थिंग यू कैन सी ओवर हियर इज विच इज वेरी मच क्लियर. थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पेन को चेंज कर लेते हैं. सो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि A and D if they are added, A plus D is giving me 15. सो मुझे ऐसे नंबर चूज करने हैं इन दोनों के लिए जो 15 बनाए. 15 बनाने के लिए यहाँ पे हो सकता है आपके पास 9 और 6 एंड योर 7 एंड 8. ओके, तो 9 minus 6 can be your 3 and your 8 minus 7 would be your 1. So here both the options are available. One option is your 1, A and your 3. So 2 और 4 तो कट जाएगा. 2 और 4 gets eliminated because उसमें से कहीं से भी 3 और 1 नहीं आ रहा. तो अब नाउ सॉल्व करते हैं आगे. तो इसी में अब हम इसका यूनिट डिजिट लेते हैं. जो पहला है फर्स्ट डिजिट जिसको बोलते हैं C और F. तो अगर आप C और F को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर बन रहा है जो यहाँ 2 दे रहा है. मतलब एक 2 डिजिट नंबर बन रहा है जो यहाँ 2 दे रहा है. ठीक है, क्योंकि सी और एफ सारे दोनों में से कोई भी सी और एफ दोनों 3 से बड़े हैं. तो ये 0 नहीं हो सकता एफ और ये सी भी 2 नहीं हो सकता सिर्फ क्योंकि ये दोनों ही 3 से बड़े हैं. यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है कि A B C D E F ऑल आर ग्रेटर देन 3. तो इसका मतलब सी और एफ को ऐड करके एक ऐसा सम बन रहा है जो 12 बना रहा है मेरे पास. ओके, सो फॉर मेकिंग 12 आई नीड मे बी 4,8 or I might need 7,5 which I do not know. Now moving further. अब यहाँ पे मेरे पास है आपका B
here I have you can uh, here I have B and here I have 2 and here I have 0. तो इसका मतलब यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है 0 के ऊपर 1, तो वो 10 बन जा रहा है। तो इसका मतलब B प्लस योर 2 gives me your plus 1 gives me your what? It gives me 10. Okay. So from here I can say that B is equal to your 10 minus your 3 is equal to your what? It would give me B is equal to 6. No, sorry, 7. B की वैल्यू आपके पास 7 आएगी यहाँ पर according to that. Is it clear? Now moving further, अगर हम 100 रीड का लेते हैं तो 3 प्लस E और 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड होगा प्लस 1 is equal to your 9 over here. Okay. So क्योंकि यहाँ पे 9 है, so your E would come out to be your 9 minus your 4, that is your 5. So I can say from here B is equal to 7 and your E is equal to 5. So value of 7 and 5 is already taken now. Okay, now let's move to a bit further. थोड़ा सा आगे की बात करते हैं हम. Okay, now I was given that A plus D is equal to your 15. Okay, now the value of your 7 is already taken. So this condition where a 7 and 8 uh, 7 and 8 could make 15 is not possible because the value of 7 has already been taken up. By whom? By B. B is equal to 7. So the only option I am left with is 50 to make 15 is 9 comma 6. सो अब हमें डिफरेंस लाना है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 9 होगा और d आपका 6 होगा, तो आपका a माइनस d वुड गिव यू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू योर 3, सो योर आंसर इज C, दैट इज 3. ओके, so now we'll take up question number 58. Question number 58 of set A 2020 paper, question number 58. Okay, it says that for what value of n, the sum of the digits of number 10 to the power n plus 1 is equal to 2. हमने पहले बात की है कि कोई भी नंबर बनाने के लिए डिजिट चाहिए होते हैं, कोई 1 एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. अगर एक्स वाई जेड 3 डिजिट्स हैं तो उससे 3 डिजिट नंबर बन जाएगा एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एनीथिंग. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इससे जो ये नंबर बनेगा 10 टू दी पावर n प्लस 1 से, तो उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जहां पर अब जो ये डिजिट्स आएंगी इस नंबर से उनका सम 2 हो. ठीक है, मतलब ओके, सो n है, सो n की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं. ठीक है, तो आएगा मेरे पास 10 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, ये कुछ आएगा आपका 1 पुट किया तो 101, तो ये आपका आ जाता है 101 आपके पास. ओके, सो यहाँ पे आपकी डिजिट्स कौन कौन सी है, 1 प्लस 0 प्लस 1, तो इनका सम आ गया 2. अब n इज इक्वल टू, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि कितनी वैल्यूज पे जो सम है इनके डिजिट्स का, मतलब डिजिट के सम का मतलब जो ये 10 टू द पावर n प्लस 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो समझ लीजिए यहाँ पे 101 आ गई, तो इसमें डिजिट्स कौन से है 1 0 और 1, तो इन डिजिट्स को जब ऐड करोगे आप तो क्या 2 कहाँ कहाँ पे आता है, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले ली मैंने, तो मेरा 10 टू द पावर 2 प्लस 1 क्या आएगा, ये हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1001. इसकी डिजिट्स हैं क्या क्या, 1 है, फिर 0 है, प्लस 0 है, प्लस फिर 1 है, तो ये भी 2 आ गया. तो अब n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं. चलिए, n 3 लेने पे 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 प्लस योर 1, सो योर आंसर कम्स 10001. तो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1. So that also gives me 2. So I can say that the only thing which is happening for the continuous power of n, अगर n को n से 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे, तो what is increasing is the number of zeros. पहले 0 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, और 0 को जितनी बारी भी ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा.
तो हर बारी दो वन तो अपीयर, एक वन और दूसरा वन हमेशा अपीयर हो रहे हैं, और उनके डिजिट्स का सम 2 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव, मतलब किसी भी एक, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ओनली, जो आपका ये है मतलब एन हमेशा 2 ही देगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एन इज इक्वल टू जीरो पे नहीं देगा। फॉर एनी होल नंबर जो होते हैं ना हमारे, वो जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो जीरो तो पहले से आ गया, तो जीरो पे नहीं हो पाएगा। तो कोई कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा एन की वैल्यू, तभी हो पाएगा वो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और रियल नंबर हमारे नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करते हैं, जिसमें आपके जो हैं और नंबर्स भी आ जाएंगे, तो वो वहां पर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये था सी, 58 का। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 लेते हैं, क्वेश्चन पेपर 24, जहां पे हम इवन और ऑड नंबर्स के पीवाईक्यू चेक करेंगे। इवन एंड ऑड नंबर्स के पीवाईक्यू चेक करेंगे। ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया है यहाँ 58 वाला, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा करेंगे जब नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे ना, कि रियल इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर से लेंगे, फिर और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर इसको आसानी से ऐसे भी किया जा सकता था। ओके, सो फॉर अ इवन एंड ऑड नंबर फॉर 2024 पेपर सेट ए विल टेक आउट क्वेश्चन नंबर इज योर 15। क्वेश्चन नंबर 15 निकालेंगे, उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू सी इट। So here is your question number, uh, your 15. Okay, now let's see. So we have already seen one thing, that in the properties you studied, we have seen that even into even will always give me an even number. Odd into odd will always give me an odd number. तो इसका मतलब ये है कि कितने भी इवन आते जाए, यहाँ पे इवन एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो उसका आंसर इवन ही आएगा। और ऑड भी जितने मर्जी आ जाए, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, तो वो ऑड ही आएगा। तो अगर इवन की पावर कुछ भी एक्स है, तो हमेशा इवन नंबर ही देगा। और ऑड की पावर कुछ भी वाई है, तो वो ऑड ही देगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। 2 to the power 333 and 3 to the power 222 is divisible by which of the following number? अब देखिए, ये जो 222 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हम कैसे चेक करते हैं कोई नंबर इवन है ऑड है? 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स 2, 0 कैरी फॉरवर्ड में 2 आया, फिर से 1, फिर से 2, फिर से 0 कैरी फॉरवर्ड 2, फिर से 2, और ये 1। तो यहाँ पे 0 आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें, हमने पिछले जो लेक्चर है इवन एंड ऑड नंबर का, इससे पहले जो अपलोड किया है, उसको चेक कर लेना जाके, उसमें प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड यू गेट रिमाइंडर एज 0, देन इट इज एन इवन नंबर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये इलेबोरेट करने के लिए एग्जाम में तो बहुत इजी से कर दोगे, आपको पता ही लग जाएगा जो 2 to 2 से है वो इवन ही होगा। नाउ फर्दर, 333 इज अनदर नंबर। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये 1 टाइम्स, ये यहाँ पर 2 आएगा, ये रिमेंड यहाँ 1 आया, ये थर्ड 3 ऊपर से कैरी, तो 2 6 टाइम 12, अगेन आई हैव गॉट 1 एंड 3। ओके, this 3 comes from here and 6 to the 12. So here remainder is 1. So I have already told you that if any number, when it's divided by 2 and the remainder comes out to be 1, then this is a odd number. Okay. So we can say one thing, that your this number is even and your this number is odd. And we have already discussed कि even number की कितनी पावर हो जाए। यहाँ पे इसकी पावर है 333, तो ये even ही देगा। और ये ऑड नंबर है, इसकी कितनी भी पावर हो जाए, यहाँ पे इसकी पावर है 222, तो ये ऑड ही देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा इवन प्लस ऑड। So in the last lecture on properties in even and odd number, we have already studied that even number plus your odd number would always give me an odd number. And we know one thing, that odd number is not divisible by 2. So आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेरे का पूरा मतलब ही ऑड आ गया अब यहाँ पर। इसको मैं ऑड मान इस तो ऑड इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिविजिबल है? जहां भी 2 होगा उससे डिविजिबल नहीं होगा। ये कह रहा है फर्स्ट में
2 and 3 बट नॉट 37, तो 2 से तो होगा ही नहीं, तो ये कट जाएगा। 3 and 37 बट नॉट 2, हाँ 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये सही हो सकता है। अभी आगे चेक करते हैं, 2 से होगा नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। 2 and 3 and 37 नहीं होगा, तो आपका आंसर है बी, क्योंकि कोई भी जो ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखो प्रॉपर्टी यूज करके कितनी आसानी से हो गया। और बहुत लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे, इसमें कैसे सॉल्व करना है मेन एग्जामिनेशन में, बहुत आसान था। प्रॉपर्टी पता है, आराम से होगा। लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 39। ओके, so we'll take up this question number 39. This is also a property based question. It says that p comma q comma r and s be distinct positive integers, ठीक है। एंड p comma q तो आपका क्या है, o है, ऑड मान लो इसे। और r comma s क्या है, इवन, तो इसको e मान लेंगे। अब इसको लिखते जाएंगे और प्रॉपर्टी को चेक करते जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स ट्राई इट। इट सेज दैट p माइनस r, तो p माइनस r यानी कि आपका ऑड माइनस इवन। ओके, तो ऑड माइनस इवन मुझे क्या देता है, ऑड माइनस इवन भी मुझे हमेशा क्या देगा, एक ऑड नंबर देगा। ठीक है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड हो जाएगा। अब दूसरा है मेरे पास फर्दर क्यू इंटू एस, वो है ऑड इंटू इवन, जो मुझे क्या देगा, इवन नंबर। तो मेरे पास आ गया, अब ये यहां से मेरे पास ऑड आया था और ये इवन है। ऑड इंटू इवन क्या मिलता है मुझे, हमेशा ऑड इंटू इवन मिलेगा मुझे even number. So this comes out to be even. So p minus r whole square q into s is even. So this statement is correct. Okay. Now let's check for this another statement. So q क्या है? Q is a odd number, so I write odd. S is a even number, odd minus even. Into q square is odd square into s is even. So अब देखते हैं ये क्या है, ये odd minus even क्या बनता है मेरे पास, आपका एक odd minus even is odd इंटू ऑड स्क्वायर इंटू इवन। सो कोई भी ऑड नंबर आ जाए, वो इवन से मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा, सीधा का सीधा इवन बन जाता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो इवन आएगा ये। तो ये हो जाएगा ऑड क्यूब इंटू इवन, तो वो भी एक इवन नंबर बनेगा, तो इवन आएगा, तो ये भी ठीक है। अब चेक करते हैं इस वाले को, क्यू प्लस आर, तो क्यू क्या है, ऑड, ऑड प्लस इवन, ठीक है, का स्क्वायर यानी कि ऑड स्क्वायर। आगे है पी प्लस क्यू, क्यू पी प्लस एस, पी इज योर ऑड एंड ओ इज योर एंड एस इज योर इवन नंबर। तो ऑड स्क्वायर इंटू ऑड प्लस इवन। सो ऑड स्क्वायर ऑड प्लस इवन क्या बनता है, ऑड प्लस इवन हमारा बनता है एक ऑड नंबर ही, तो ये हो जाएगा ऑड फिर से। तो हो जाएगा ऑड इंटू आपका ऑड स्क्वायर इंटू ऑड यानी कि ऑड क्यूब, तो ये भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड आया तो 3 भी सीखते, तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल द 3 आर करेक्ट। सिर्फ प्रॉपर्टी से हो रहा है, कुछ कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64। तो 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं, लास्ट क्वेश्चन है 64 वाला। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी और जो ऑड एंड न्यू गिवन के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं दूसरे पेपर्स में उनको करेंगे। इस क्वेश्चन को नेचुरल नंबर्स में भी लिया जा सकता है, बट अभी इसको नहीं देखते हम थोड़ा सा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मीनिंग होता है कि जो वन से स्टार्ट हो नंबर्स, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स का मीनिंग ये होता है कि जो सराउंडिंग में जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जब हम उनको देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं और उसको एक वैल्यू दे सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स है। सराउंडिंग में जो भी चीज दिखती है वो वन तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इन्फानाइट, मतलब जो बहुत सारी चीजें इनको काउंट भी नहीं कर सकते, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the following question statement. What are the unique values of x and y? x और y की different values find करनी है, where x and y are distinct natural numbers. Okay. ये नेचुरल नंबर है, मतलब ये 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं, और इनकी अलग वैल्यूज हैं, यूनिक है, मतलब बाकी नंबरों से मैच नहीं करेंगी, कुछ अलग ही वैल्यूज हैं। स्टेटमेंट 1 है x by y is odd। तो अब इसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पूछता है और दो स्टेटमेंट देगा आपको। उन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि हमको क्वेश्चन आंसर करने के लिए कितनी स्टेटमेंट की जरूरत है। सारी की दोनों स्टेटमेंट की एक साथ जरूरत है, या सिर्फ एक किसी भी एक स्टेटमेंट से हो जाएगा, या सिर्फ किसी एक स्टेटमेंट से ही होगा बाकी दोनों से नहीं होगा। तब स्टेटमेंट वन पे जाते हैं। ये कहता है एक्स बाय वाई इज ऑड, और एक्स और वाई की हमें यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स और वाई की अलग वैल्यू होनी चाहिए जो किसी और वैल्यू से मैच ना करे। अब चेक कर लेते हैं।
ये कह रहा है कि x को अगर y से डिवाइड किया तो ऑड आएगा। तो अगर मैं x को 3 लेता हूँ और y को 1 लेता हूँ तो ये x बाय y हो जाएगा मेरा 3 डिवाइड बाय 1, तो ये आपके पास आ रहा है 3, जो कि एक ऑड नंबर है। आपके पास यहाँ पे x को मैंने 3 लिया, y को 1 लिया, तो x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू योर 3, जो कि एक ऑड है। फिर मैं वापस x को आपका लेता हूँ क्या, 6 लेता हूँ मैं, और y को मैं लेता हूँ 2। तो आपका x बाय y यहाँ हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि है फिर से 3, जो खुद भी क्या है, ऑड नंबर है 3। ठीक है। तो यहाँ तो वैल्यूज कितनी आ गई, दो वैल्यूज आ गई x की और दो वैल्यूज आ गई y की। तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो स्टेटमेंट वन से हम सिर्फ नहीं निकाल पाएंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यू हम स्टेटमेंट वन को यूज करके सिर्फ नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज को चेक करो कि हमारे पास स्टेटमेंट वन को यूज करते हुए दो वैल्यूज आ गई, 3, 1, और दूसरा आ गया 6, आपका 2 अभी के लिए। ठीक है। अब स्टेटमेंट टू पे जाते हैं। स्टेटमेंट टू कहता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू योर 12। तो कितनी वैल्यू से हो सकता है ऐसा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1। ठीक है। और आपका 6, 2। पर हमें एक चीज चेक करनी है, देखिए कि डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो यहां भी आपकी वैल्यूज बहुत सारी आ रही हैं। पर अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ रीड करूं कि मेरे पास x बाय वाई की वैल्यू और लाने के लिए एक केस था 6, 2 का, और यहाँ x इंटू वाई 12 लाने के लिए भी एक केस था 6, 2 का। तो इन दोनों को अगर मैं यूज कर लेता हूं तो मेरे पास x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं और जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है कि x बाय 2 आपको 3 दे रहा है जो ऑड है, और x इंटू 2 आपको 12 दे रहा है, वो सॉरी x इंटू वाई 12 दे रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई होगी, तो दोनों कंडीशन इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके सेटिस्फाई हो जा रही हैं। दोनों स्टेटमेंट को आप सेट अगर अलग अलग यूज कर रहे हो तो आंसर नहीं आ पा रहा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर, चेक करते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईच स्टेटमेंट अलोन। तो आपका सी आ जाएगा कि दोनों को एक साथ यूज करके यूज हो रहा है, हो जा रहा है आंसर, पर एक से नहीं आ रहा। So with this, we are done with the PYQ on even and odd number from the 2000 and your 24 पेपर। नेक्स्ट वीडियो में 2023-22 के लेंगे। और आप क्या करो कि इससे पहले कंसेप्ट वीडियो डाली गई है ऑड एंड इवन नंबर की, उस वीडियो को लो, देखो, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, और फिर खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करो। और अभी तक दो कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं इसमें। पहला कंसेप्ट हमारे पास था कि जहां नंबर को हम एबीसी की फॉर्म में लिखते थे और ऐसे 100 इंटू a प्लस 10 इंटू b प्लस c। तो हमने वहां देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय कंपैरिजन ओनली, कंपैरिजन। और जब हम ऑड एंड इवन नंबर्स को देख रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर आप लर्न कर ले रहे हो ऑड एंड इवन नंबर की, कि ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑड माइनस इवन एक्सेट्रा, जो प्रॉपर्टीज अगर आप याद कर रहे हो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो देखिए सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन प्रॉपर्टी को कर लोगे हो जाएगा आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक फर्दर। थैंक यू सो मच।